through some really basic aspects of fertility determinants. So by the end of the tutorial, you guys will be able to distinguish among different terms used to describe fertility in the population. We need to know कि fertility है क्या और उसकी कितनी variations हैं. Describe the determinants of fertility in the population. Identify different sources of data to calculate different indicators of fertility. Everything goes hand in hand. So, by definition, fertility is production of a live birth, natality जिसे बोलते हैं. Infertility, these are different words that you will be coming across whenever we're talking about fertility and fertility, determinants of fertility rates, and so forth, so on. Infertility, inability to produce a live birth. Parity, number of children born alive to a woman. Gravidity, number of pregnancies a woman has had, whether or not they produce a live birth. ठीक है? Fecundity, physiological capacity to conceive, reproductive potential. Infecundity या sterility जिसे हम बोलते हैं, inability of a woman to conceive a pregnancy. Primary sterility, never able to conceive a pregnancy. Secondary sterility, inability to conceive after one or more children have been born. ये बहुत important है because जब हम अभी आप देखेंगे indicators करेंगे हम determinants करेंगे, if we don't know these specific names, we will always get confused in what are we calculating. ठीक है, हमारा data अच्छा नहीं बनेगा. Fecundability, probability that a woman will conceive during a menstrual cycle. Now, that was like a very basic part of what fertility aspects have and what are the different words that we use in distinguishing them. The fertility determinants, the proximate determinants of fertility are the biological and behavioral factors to which indirect determinants, that is social, economic, psychological, environmental variables affect fertility. तो कुछ चीजें डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती हैं और कुछ चीजें इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती हैं, डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती हैं. प्रॉक्सिमेट का क्या मतलब होता है? Those which are closer, those which are more in exposure, you are more exposed to it. While distal are those which are like, it can be indirect, it can be induced, something like that. बट प्रॉक्सिमेट ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो कि या तो नेचुरल होते हैं जैसे बायोलॉजिकल लिखा हुआ है, या फिर उनकी सोशो इकोनॉमिक कोई वैल्यू होती है, कोई सोशल साइकोलॉजिकल पार्ट होता है. ठीक है, तो जो ये प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स हैं इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स हैं. इनडायरेक्ट कौन से हैं? जो कि हम भी इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं. दे नॉट फ्रॉम इनसाइड, देयर एक्सपोज्ड इन द एनवायरनमेंट. सॉरी, जिसमें इनडायरेक्ट में सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, जिनमें हम बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है. स्ट्रेस इज अ बिग अम्ब्रेला. वेयर डज दिस स्ट्रेस केम, व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड दिस स्ट्रेस बिकम सो lethal that the fertility was being affected by it. So all these factors can be seen. Distinguishing feature of a proximate determinant is its direct connection with fertility. ठीक है, हमेशा ज़्यादातर जो बायोलॉजिकल होते हैं वो हमारे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स होते हैं और जो बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट. इसीलिए कहते हैं पॉजिटिविटी कैन मेक थिंग्स हैपन अ लॉट. नाउ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड determinant list. This is called Bongartz et al. 1984. ये एक basically research article है, and it actually identified 9 proximate determinants of fertility, जिनमें percentage of women in sexual union, frequency of sexual intercourse, postpartum abstinence, lactational amenorrhea, contraceptive use, induced abortion, spontaneous intrauterine mortality, natural sterility and pathological sterility. जब भी हम किसी चीज़ को indicate करते हैं
तो हम ये सारे पैरामीटर्स रखते हैं, ठीक है। और हमारी वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम किस चीज़ को किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ की एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ। परसेंटेज ऑफ वुमेन इन सेक्शुअल यूनियन, इट इज अज्यूम्ड दैट द नंबर ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज मैरिड और लिविंग विद समवन डिटरमिन्स द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन। अब ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है। हमारे माशरे में ये चीज़ इतनी अज्यूम नहीं की जाती, मैरिज के बाद ही सेक्शुअल यूनियन होती है, लेकिन all over the world, because it's a standardized list, they're talking about people who are living together and are sexually active with each other, or living with someone determines that proportion of women in a society exposed to the risk of becoming pregnant. Okay, pregnancy itself is an exposure. The greatest the number of women exposed, the higher is the resulting fertility. Zahiri baat. Sorry. Second is postpartum abstinence. Abstinence का क्या मतलब होता है कि there is no sexual activity after the delivery of a baby. The practices of breastfeeding and sexual abstinence after the birth of a child reduce a woman's exposure to becoming pregnant. Breastfeeding, पहले हमने बात की थी the number of percentage of women in sexual union. This is an aggravating factor, or this is an inducing factor, let's say. This is a diffusing factor कि अगर postpartum abstinence है, इनमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि females are not able to get pregnant. बहुत सारी ऐसी भी केसेस आप आएंगे आपकी नज़र में जिनके अंदर during lactational amenorrhea women get pregnant, they are pregnant, लेकिन वो ज़्यादातर के नहीं होते, that's like 10 to 15%, ठीक है। बाकी सब जो हैं वो amenorrhea में होते हैं, okay, because the cycle is not happening. Breastfeeding of long duration and on-demand delays the return of a woman's normal pattern of ovulation. ठीक है, cultural norms often prescribe limiting sexual relationships after birth. Contraceptive use. This is also a disabling factor for fertility. Use of contraception to delay or limit the number of children born clearly affects a society's fertility level. The index of contraception measures the effect on fertility of the proportion of women using contraception as well as the effectiveness of the methods used. अब बहुत सारे लोग हैं जो contraceptive use करते हैं, फिर भी वो pregnant हो जाते हैं, लेकिन again that is like 20% of the whole population which are contraceptively active also. ठीक है। पैथोलॉजिकल या प्राइमरी स्टेबिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट्स बता रहे होते हैं तो इनमें सारे लोग आ जाते हैं, वो जो कि पैथोलॉजिकली स्टेराइल हुए हैं या वो जो प्राइमरी स्टेराइल हुए हैं या वो जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं या वो जो कि लैक्टेशन एमेनोरिया में हैं, एंड यू नो ऑल द डिटर्मिनेंट्स कम इनटू इट. Primary sterility or the inability of a woman to bear a child for biological reasons is the primary sterility. Pathological में ज़्यादातर कोई infection होता है of the tubes, the infection of the vagina may induce ascending infections, and you know PID हो सकता है, pelvic inflammatory disease. They can all lead to decreased fertility. In societies that value large families, such levels of sterility prevent some women who would like to bear children from doing so and lower the average level of fertility. Now, we've seen the different terms used in fertility. We've seen the 9 aspects of fertility. ये स्टैंडर्डाइज नहीं, आप लोग आना चाहिए, ठीक है. द थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज टू सी द डिफरेंट सोर्सेज. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस तरह मेजर करेंगे कि कराची में फर्टिलिटी रेट क्या है या सिंध में फर्टिलिटी रेट क्या है या पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट क्या है. तो हम डिफरेंट डेटा सोर्सेज निकालते हैं, ठीक है. डिफरेंट डेटा सोर्सेज जैसे सेंसस होते हैं, एवरी 5 years में सेंसस होते हैं, समटाइम्स एवरी 10 years में सेंसस होता है. वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स होते हैं VRS के नाम से. हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं है, पंजाब में फिर भी हमें मिलेगी ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ है ना ज़्यादातर दे आर कंप्यूटराइज्ड, नॉन पेपर वाली चीज़ होती है.
नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सर्वेज, ये होते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, और इसकी हम मतलब गवर्नमेंट जो है ये इसकी अप टू डेट रखते हैं। वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वेज होते हैं, ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वेज लिखकर, और उसके अंदर आपको पाकिस्तान का अभी रिसेंट वाला जो है वो बहुत अच्छा आएगा। आई कैन नॉट शो यू हेयर क्योंकि उसके अंदर ना अलग से वी नीड लाइक अराउंड हाफ एन आवर फॉर दैट, क्योंकि वो बहुत सारे ग्राफ्स हैं, उसको समझाना फिर एक लंबा काम है। So if we get a time again, I can show you these. Okay, but you guys can go on the net and see World Fertility Service and click on Pakistan. So you'll get an idea. Demographic and Health Service. ये तो हमारे पास गवर्नमेंट के डेमोग्राफिक हेल्थ सर्विस होते हैं। ये आप नाम लिखें पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्विस, आपको पूरी फाइल मिल जाएंगी। अभी लेटेस्ट 2018 to 2019 की है, और उसमें आप पूरा स्टैट्स कर सकते हैं। अगेन स्टैट्स का भी टाइम नहीं है हमारे पास। द पॉइंट इज टू क्लियर योर कंसेप्ट्स रिगार्डिंग फर्टिलिटी डिटर्मिनेंट्स एंड मेजर्स। So a fertility measures from census data, वो कौन से होते हैं? Child woman ratio. Child woman, this is just, I'm giving you some examples of different determinants taken from data and then put into different measures. For example, child woman ratio. इसका formula है number of children under 5 per 1000 women of childbearing age in a given year. And this is the formula. This is an example. ठीक है, हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। सिंस इट्स अ रेशियो, इसका कोई परसेंटेज या कोई यूनिट नहीं होता है। सो वी सी दैट हाउ मेनी वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज आर हैविंग चिल्ड्रन अंडर एज 5 दे बेयरिंग। तो उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि चाइल्ड वुमेन रेशियो, एक जो वुमेन अंडर 5 हैं वो जनरली रिप्रोडक्टिव एज यानी 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज में कितने बच्चे अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक जगह का 836। अब उससे हम डिफरेंट चीजें निकालते हैं। सुनिए, 836 इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच आर बोर्ड बाय द वुमेन एजेस 15 to 49 ईयर्स रिप्रोडक्टिव एज में। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है ऑफ द स्टैट्स जिसके अंदर यूएस सेंसस ब्यूरो से मैंने लिया है। ये बहुत पुराना डेटा है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया बिकॉज दिस वाज सिंपलेस्ट आई कुड फाइंड। इसके अंदर यू कैन सी कि इटली में हमारे पास चाइल्ड वुमेन रेशियो 145 है, कम है। यानी जितनी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं उनमें 145 टोटल, एक एवरेज जो है 145 बच्चे जो हैं वो पर ईयर पर 1000 में आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 पर 1000 वुमेन ऑफ चिल्ड्रन बेयरिंग गिवन इन अ ईयर, यानी हर 1000 पे कितने बच्चे जो हैं, हर 1000 माँ जो हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में आ रही हैं वो कितने बच्चे पैदा कर रही हैं एक साल में। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जी इटली में कम क्यों है, जापान में जब हम कंपेयर करते हैं, युगांडा में इतना ज़्यादा क्यों है, साउथ अफ्रीका में क्यों है इस तरह। तो हम इसके अंदर फिर डिटर्मिनेंट्स आते हैं कि व्हाट हैपेंड, व्हाट आर द इंड्यूसिंग फैक्टर्स एंड व्हाट आर द डिसेबलिंग फैक्टर्स व्हिच आर कॉजिंग फर्टिलिटी रेट्स, फर्टिलिटी या चाइल्ड वुमेन रेशियो टू डिक्रीज और इंक्रीज। Another, crude birth rate, number of live births per 1000 population in a given year. ठीक है, और इस तरह इसकी कैलकुलेशन होती है। अब 48.5 है। ठीक है, अगेन दिस इज अ रेट। ठीक है, एक एग्जाम्पल है 48.5। So crude birth rate, data requirements and limitation, need a complete and accurate vital registration system. यहाँ पे थोड़ी सी limitations हमारी इसीलिए आती हैं, इसलिए हमें data sources बहुत important होते हैं कि हमने किस तरह से कहाँ से वो data लिया है। ठीक है, इसीलिए जो पहली स्लाइड थी जिसके अंदर हमने ये बताया था कि what are the different names regarding fertility, different terms that we use regarding fertility. अगर हमें वो टर्म्स नहीं पता है तो हम ये रेट्स नहीं निकाल सकते, हमारा डेटा सही नहीं निकलेगा। जब आप रिसर्च करेंगे तो उसके नहीं पता चलेगा।
अब एग्जाम्पल है क्रूड बर्थ रेट, ओनली अ क्रूड एस्टिमेट ऑफ फर्टिलिटी, ऑल द पॉपुलेशन इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर इज नॉट एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्रूड है, क्रूड मीन्स एन ओवरऑल वेयर अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एक्सपोज टू रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। अब रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी का क्या मतलब है कि क्या पता उनका पार्टनर उनके साथ ही ना हो, वो बोर कैसे करेंगे बच्चे, ठीक है, या उनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे अभी हमने कहा था कि कुछ पैथोलॉजिकल स्टेरिलिटीज हैं, या वो लैक्टेशन एमिनोरिया में हैं, या उनके अपनी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं या कर पा रही हैं। जैसे नॉट गुड फॉर कंपेयरिंग फर्टिलिटी अक्रॉस पॉपुलेशंस। ठीक है, एज वेरिएशन इन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग कंपेयर्ड विल अफेक्ट द बर्थ रेट। अब जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में है ही कम से से, तो फर्टिलिटी रेट खुद ब खुद कम हो जाएगा। जहाँ पे पॉपुलेशन 15 टू 45 इयर्स एज में फीमेल्स की ज़्यादा आ रही है बनिस्बत 15 से कम इयर्स के एंड 45 से ज़्यादा इयर्स के, तो हमें फर्टिलिटी रेट वहाँ खुद ब खुद ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट्स हमारी पूरे डेटा को, पूरे इंडिकेटर्स को गवर्न करते हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जनरल फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन इन ए रिप्रोडक्टिव एरा एंड इन 1 ईयर। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है 233.5। ठीक है, जनरल फर्टिलिटी रेट हम वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर बर्थ्स, जो हमारे पास नादरा है, हमारे पास KMC है, हमारे पास जो पीट्स का डिपार्टमेंट है, या जो बर्थ डिपार्टमेंट अलग से हर टर्शरी में होता है जहाँ से आप बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं बच्चे का, वहाँ से आप ये सारे डेटा ले सकते हैं। May also be estimated from national census or surveys, survey data using the child-woman ratio when birth statistics are not available. Relates birth to the age sex group at risk of giving births, usually defined as women ages 15 to 49 years of age. ठीक है, अब हमें ये देखो कितनी सारी टर्म्स अभी हमने पढ़ी हैं, तो उसमें ये बार बार आ रहा है। ठीक है, more defined measures than crude birth rate to compare fertility across population, approximately equals to 4 times the crude birth rate। क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी, क्रूड बर्थ रेट सबको प्रोजेक्ट नहीं कर रहा होता है, वो एक बहुत ही वेग सा एस्टिमेट देता है एक जगह के बारे में। जब हम जनरल फर्टिलिटी रेट डिफरेंट सोर्सेस से, ऑथेंटिक सोर्सेस से निकाल के लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि सही पिक्चर क्या है। एक और एग्जांपल है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब फर्टिलिटी रेट्स के डिटर्मिनेंट्स के हिसाब से, जैसे एज स्पेसिफिक है, ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ्स पर ईयर पर 1000 वुमेन ऑफ अ स्पेसिफिक एज ग्रुप, जैसे नंबर ऑफ वुमेन एज 20 इयर्स लेट्स सपोज, तो उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ बर्थ्स टू वुमेन एज 20 इयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन who were 20 years of age in that specific area। ठीक है, और जरूरी नहीं कि वो मैरिड हो, ठीक है, इसमें ये जरूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ्स ऑफ अ वुमेन एज, तो इसके अंदर चाइल्ड बेयरिंग हो सकती है। ये एग्जांपल है हाउ वी टेक इट आउट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, एज ऑफ वुमेन। ठीक है, हमारे पास ये देखो कैटेगरीज है, नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ बर्थ्स, और इसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वुमेन को, नंबर ऑफ बर्थ्स को डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वुमेन ऑफ दैट स्पेसिफिक एज ग्रुप, तो हमें एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट मिलता है कि इस एज ग्रुप में इतना रेट है। अब अगर हम सब में कंपेयर करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहा है 306, 20 टू 24 इयर्स की जो वुमेन है, इस एज ग्रुप में सबसे हाईएस्ट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आता है। ठीक है, अब इसके ऊपर फिर से एक बहस हो सकती है कि अगर मैं, दिस इज ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया, इफ आई गिव इट, कि मैं अगर प्रोविंसेस का करूँ कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, NWFP सबका कंपेयर करूँ, तो मुझे सबकी डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी, किसी का ज़्यादा हो, किसी का कम होगा। फिर मैं देखूंगी क्यों कम है, तो उसमें हम डिटर्मिनेंट्स लेके आते हैं, पॉपुलेशन का है, एज का है, मैरिज हुई है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ।
So age-specific fertility rate, why do we need them? These are very specific and very good rates. For comparison, fertility behavior at different ages. For comparison of fertility at different ages over time. For comparison of fertility across countries and population. ये बहुत अच्छे होते हैं और standardized rates होते हैं. ये बहुत specifically बताते हैं आपको कि कौन से category में कितनी ज़्यादा fertility chances हैं. ठीक है? So the couples can also plan their pregnancies according to their age. Total fertility rate, the average number of children that would be born to a woman by the time she ended childbearing, if she were to pass through all her childbearing years, conforming to the age specific fertility rates of a given year. हमारे यहाँ हर जगह बहुत different होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 14 to 45 standardized all over the world, but it can vary. Okay, and this is the this is age specific fertility rate, और फिर ये हम जनरल फर्टिलिटी रेट इससे निकालते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट सबका जो है सम निकालते हैं. एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का सम निकाल के इसको 1000 से डिवाइड करते हैं पर 1000 वुमेन ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग एज, और हमें टोटल फर्टिलिटी रेट मिलता है किसी भी एक जगह का. जैसे ये एक जगह का है जो हमने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकाला था, और उसी से हम जब हम सबको सम अप करते हैं सारी कैटेगरीज को, टोटल वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज फ्रॉम 15 टू, अब यहाँ पे 49 है लेकिन 45 तक ज़्यादा होता है टोटल फर्टिलिटी, तो दिस इज 6.57. So TFR is a synthetic measure of fertility that is independent of age structure of a population. हम एज स्पेसिफिक नहीं कर रहे तो हम डिपेंडेंट भी नहीं है उसके ऊपर. बेस्ट सिंगल मेजर टू कंपेयर फर्टिलिटी अक्रॉस पॉपुलेशन. अगर हमें एक वेग सा आइडिया लेना हो, एक्यूरेट बट वेग आइडिया इन द सेंस के टोटल फर्टिलिटी रेट्स डिफरेंट कंट्रीज के क्या हैं और हम किस लेवल पे हैं और हमें कितना अपना कंट्रोल करना चाहिए, तो हम TFR यूज़ करते हैं. फिर फॉर फर्दर कटिंग डाउन और फर्दर ट्राइंग टू decrease the fertility rate so that हमारी population span सही हो, तो हम फिर age specific fertility rate पे जाते हैं. Best single measure to compare fertility across population does not give a measure of actual numbers of births any woman will have all through her reproductive years. This is a bit of a new thing, children ever born, CEB के नाम से. This is computed from census or sample surveys by asking women their age and number of live births they ever had, including those having died since birth. ठीक है, जिंदा होके यानी पैदा होके उनका इंतकाल हुआ, उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं. Children ever born provides one measure of population fertility, useful only if age group of women is considered. Data can be used by demographers to indirectly estimate age-specific fertility rate and total fertility rate in a population. So, children ever born for women over age 49 is called completed fertility rate. ये एक न्यू टर्म है, तो आई वाज लाइक कि आप लोग को पता होना चाहिए. बेसिक्स आपकी पहली वाली स्लाइड में सब कवर हो गई हैं. दिस इज समथिंग दैट आई थिंक यू गाइस शुड हैव एन अपडेटेड नॉलेज अबाउट. It shows how many children on average a certain cohort of women who have completed childbearing actually produced during their childbearing years. Example, 1991, the number of children ever born on average to women ages 45 to 49 was 6.9. ठीक है, तो ये हमें पता चल जाता है कि इनके क्या हैं. Children ever born on average to women ages, यानी अगर एक बंदी है उसका 45 to 49 इयर्स की एज है, तो एवरेज ओवरऑल वो 6 से 7 बच्चे पैदा कर सकते. ठीक है, ओके. सो दिस इज हमारे पास कुछ हाइलाइट्स हैं रिगार्डिंग 2020 प्लानिंग ऑफ वर्ल्ड फर्टिलिटी and family planning. Globally, women are having fewer babies, but fertility rates remain high in some parts of the world. क्योंकि हम जब टोटल लेते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते किस जगह पे ज़्यादा है किस जगह पे कम है. जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें समझ आता है कि अच्छा इस कंट्री में कम है या इस कंट्री में कंट्रोल्ड है, इस कंट्री में बहुत ज़्यादा है. ओवरऑल हमें पता नहीं चल रहा था.
The decline of fertility in sub-Saharan Africa has been relatively slow and occurring later compared to other regions. Globally, the level of fertility is expected to continue declining. Today, many more women of reproductive age are using some form of contraception than in 1990. Use of contraceptive methods increased in all regions between 1990 and 2019. There is an inverse relationship between contraceptive use and fertility. Although there is always a 10% chance of conceiving during contraception, but then there are different determinants. अब इसमें भी determinants का काम आता है. So I'm just going to go back और एक चीज़ मैं determinants का revision करा दूँ क्योंकि determinants बहुत important है. So fertility determinants में proximate determinants of fertility are the biological and behavioral factors. Proximate means the most closest, the most exposed to. जिसमें indirect और direct determinants हैं. Indirect कौन से हैं? जो behavioral factors हैं. Direct जो कि biological factors हैं. Indirect determinants में social, economical, psychological, environmental variables आ जाते हैं. और direct में biological, जिसमें genetics भी आ जाती हैं और आपकी अपनी physiology और pathology सारी चीजें आ जाती हैं. The distinguishing feature of proximate determinants is its direct connection with fertility. Fertility बहुत important है. ये 9 aspects हैं Bongard et al के enumerated 9 proximate determinants of fertility. Percentage of women in sexual union, frequency of sexual intercourse, postpartum abstinence, lactation amenorrhea, contraceptive use, induced abortion, spontaneous intrauterine mortality, natural sterility and pathological sterility. ये बहुत important है. इन determinant से हम further on indicators को देखते हैं कि कहीं पे indicators ज़्यादा बता रहे हैं total fertility rate, तो क्या वो सब पे लागू हो रहे हैं या हमें एज स्पेसिफिक या जेंडर बर्थ स्पेसिफिक होके देखना है. ठीक है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी ग्रेविडिटी क्या चीज़ होती है, अभी हमने बात की थी. नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज ऑफ वुमेन हैज हैड वेदर नॉट दे प्रोड्यूस अ लाइव बर्थ. तो जो हम क्रूड बर्थ रेट करते हैं उसमें इन चीज़ों की भी आ जाती है. जैसे पैरिटी में नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न अलाइव टू अ वुमन. अब अलाइव तो बॉर्न हुए बट आफ्टर दैट क्या हुआ हम उसको नहीं ले रहे होते क्रूड बर्थ रेट में. तो हम जब ये डिटर्मिनेंट्स देखते हैं ना, ये इनसे हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा बेसिकली किसी भी कंट्री में किसी का TFR अगर बढ़ा हुआ है, टोटल फर्टिलिटी या जनरल फर्टिलिटी रेट या एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और उनको किस तरह कंट्रोल किया जाए ताकि that is best for the mother as well as the child. So that's about it for today. If there is any question, I would really love to answer them. I hope कि सबके concepts clear हुए हों क्योंकि आज की क्लास भी conceptual, इसलिए मैंने ज़्यादा stats नहीं डाले इसके. Sorry. If there is any question that you would like to question me for, Edmodo पे ये assignment इंशाल्लाह कल आपका upload होगा. So और 48 hours आपको time मिलेगा. Any question, any query regarding the fertility determinants, indicators? Does Pakistan have fertility data? Yes, they have. मैंने अभी बताया था ना, पाकिस्तान डेमोग्राफिक रेट पे आप चले जाएं. ओके, आई शो यू गाइस. जो मैंने सोर्सेज दिखाए थे, देखो सेंसस में आपको मिल जाता है. ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आप देख सकते हैं पाकिस्तान सेंसस करके. वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स हमारे पास इतने अच्छे नहीं है, लेकिन नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल सर्वेज भी मिल जाते हैं. जैसे WHO का, यूनिसेफ तो है ही बच्चों का, आप उधर WHO में भी होता है. वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वेज आप देखिएगा जरा जाके, you'll get an idea. अच्छा जी, there's a graph in the example about the countries. Yes, there is. So what about it? This is showing the different child woman ratios. जैसे मैं तो एक एग्जाम्पल युगांडा की दी थी, लेकिन अगर मैं
आई वांट टू कंपेयर कि वाकईतन युगांडा में बहुत ज़्यादा है या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ऐसे हैं, तो हमें एक आइडिया हो जाता है. अच्छा, इसके अंदर ना देयर इज अ डिफरेंस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियोज. क्योंकि जब हम रेशियो की बात करते हैं ना हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है. मैं अभी इसके ऊपर बात ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन जब हम रेशियो करते हैं ना तो हमारे ये एक्स और वाई एक्सिस अलग होते हैं, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव ही ले रहे हैं मेजरमेंट्स, नो डाउट, but we have some y dependent variables in y axis because there is different source school of thoughts. ये पहले भी मैंने बात की थी कि देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का एक स्पेसिफिक यानी स्टैंडर्डाइज्ड है कि वाई एक्सिस पे क्या आना है और एक्स एक्सिस पे क्या आना है, लेकिन स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट होते हैं. दूसरा, जब हम रेशियोज यूज करते हैं ना, हमारे रेशियोज का थोड़ा मुख्तलिफ होता है अंदाज. सो प्रॉबली इनके जो यूएस सेंसस ब्यूरो हैं इनका ये रेशियो होता होगा, इस तरह निकालते होंगे. इसके अलावा कोई क्वेश्चन? Anything about fertility determinants, fertility rates? Any other question? So the objective was to distinguish different terms that we've done. Everyone okay with the terms, I hope. Then the second object was to describe the determinants of fertility in population, so that we have a clear idea कि हम किसको determinant बोल रहे हैं और किस basis पे बोल रहे हैं. Then we also identified different sources of data to calculate different indicators, जिसमें थोड़ी सी example मैंने आपको indicators of fertility की दे दी. इसके अलावा भी बहुत सारे indicators हैं fertility के, लेकिन just to give you an idea कि ये प्रैक्टिकली लग कैसे रहे, ये डिटर्मिनेंट्स क्या कैसे यूज करते हैं. क्वेश्चन आता है ना कि अच्छा आपने मुझे डिटर्मिनेंट्स बता दिए, कॉज बता दिया, अब मैं इसको रिसर्च में कैसे लगाऊंगा या लगाऊंगी, या मैं कैसे मालूम करूंगी कि मैंने एक डेटा पढ़ा है कि उसके अंदर ये GFR है या ये क्रूड बर्थ रेट है या ये चाइल्ड वुमेन रेशियो है, और उसके अंदर मैं कैसे लगाऊंगी कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है. तो हम ये डिटर्मिनेंट सारे चेक कर सकते हैं. जब आप रिसर्चर्स पढ़ेंगे ना उसके अंदर ये सारे डिटर्मिनेंट्स डिस्कस होते हैं कि उनके मुल्क में जहाँ भी ये रिसर्च हुई है या हमारे मुल्क में जहाँ रिसर्च हुई है वहाँ पे ये डिटर्मिनेंट्स की अपनी क्या है स्टेटस. सो यू गेट एन आइडिया कि किस वजह से हमारा TFR कम हो रहा है या बढ़ रहा है, so that in the future we can do some preventive measures in order to control fertility rather than to make it a hassle. Any other question? We still have time. If anyone
Has everyone understood these three basic objectives? Because ये important है बेटा, यही आपके बेसिक्स बनाएंगे जब भी कोई केस सिनेरियो आएगा या कोई EMQ आएगा या BCQs आएंगे उन सब में. ठीक है, आप लोग ये नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सर्वे ये सब लिखिए आप नाम एंड यू गेट एन आइडिया. वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्विस तो प्लीज़ जाके देखना, बहुत अच्छे हैं वहाँ पे ग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है. यू कैन ऑल्सो सी दैट कि फ्रॉम 1990 जब से डेटा सोर्स उनके पास है तो अब तक क्या डिफरेंसेस आए. डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वेस, ये भी पाकिस्तान का डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे हर साल निकलता है, तो यू गाइस कैन ऑल्सो सी दैट, अपडेटेड होता है वो. यूनिसेफ पे जाके देखें, यू गेट एन आइडिया देयर. इसके अलावा जर्मन क्रॉस, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा अच्छी. एक नोमा है, KNOEME, इट्स अ साइट फॉर डेटा. तो उसमें बहुत सारी हैं डिफरेंट कैटेगरीज का डेटा है, इसमें फर्टिलिटी रेट्स का भी डेटा है. तो आप वो देखिए. इंशाल्लाह अगर हमारा नेक्स्ट कोई ट्यूटोरियल ऐसा होता है तो आई शो यू गाइज, बिकॉज वी नीड लाइक at least half an hour for the discussion and 15 minutes for showing the whole thing. So इसमें ये time span हो नहीं रहा था, that's why I didn't put these things in it.